आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए प्लस मैथमेटिक्स में। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शन? Let you are given a function f from a to b and a function g from b to c. Let these are given two functions. Then composition of f and g is denoted by GOF, and it is defined as GOF from a to c. And how you will evaluate this? GOF of x will be equal to g of f of x for all x belong to set a, because जो f डिफाइन था from a to b है, तो f के अंदर जो वैल्यू होगी दैट विल कम फ्रॉम दिस सेट a। डायग्राम से आपको थोड़ा क्लियर होगा। यू कैन सी दिस फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू सेट b and g is defined from b to c. Then GOF will be defined from a to c where value is taken from set a। ठीक है, तो जो GOF हम इवेल्युएट करेंगे, ये वैल्यू जो x होगी, दिस विल कम फ्रॉम सेट a। So this GOF is known as composition of two function f and function g. All right, okay, आगे देखिए, इसको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। नाउ एग्जांपल इज यू आर गिवन टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज fx is equal to cos x and gx is equal to 3x square, right? And f and g, they both are defined from r to r. R stand for real number. We need to find GOF and FOG, and we need to check whether GOF and FOG are equal or not, right? Basically we need to prove they are not equal. So what we will do, first of all we will find GOF. Now as अभी हमने किया 2 मिनट पहले, what do you mean by GOF? GOF is nothing, it is g of fx. Now what is the value of fx here? Fx is equal to cos x, so put this value in this bracket and you will get g of cos x. g क्या करता है वैल्यू को? It will square the number and multiply the number by 3. Square of the number multiply by 3. Square of the number and multiply by 3. So you will get, it will be 3 cos square x, right? Now we will evaluate what? FOG. Now FOG is nothing, FOG is equal to f of gx. Value of gx is 3x square. So put the value here, you will get f of 3 of x square. F, what f will do? F will take the cosine of the given value. Cosine, right? So it will we have taken cosine of the value. So clearly this cos of 3x square is not equal to 3 cos square x, because यहाँ पर जो angle है that gets multiplied by 3. This value and this value, they are not equal, so we can say these two values are not equal, implies your GOF and FOG are not equal. Understood? From this maybe ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि FOG और GOF आपस में जरूरी नहीं है, it may be. All right, आगे देखिए, one more example. Here f is defined, your function fx is 3x plus 4 by 5x minus 7 and gx is 7x plus 4 by 5x minus 3. Clearly जो f का denominator है that cannot be equal to 0, because something upon 0 is not defined. So this 5x minus 7 cannot be equal to 0, implies x cannot be equal to 7 by 5. All right, moreover this 5x minus 3 also cannot be equal to 0, so x cannot be equal to 3 by 5. So what we have done, it is subtracted from real number the domain का मतलब जो वैल्यू हम पुट करते हैं, उस पुट वैल्यू में से अगर हम 7 by 5 को छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है ना? इस फंक्शन का मतलब है यही है कि जो भी आपने वैल्यू पुट करनी है वो इस वाले सेट से, इस लेफ्ट वाले जो भी हमारे पर लिखा नंबर है वहां से पुट करते हैं।
ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग x कैनॉट बी इक्वल टू 7/5, सो हमने क्या किया, रियल नंबर में 7/5 को माइनस कर दिया। मीन्स वी कैन पुट एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5। सिमिलरली इन द केस ऑफ gx। ओके, हमें क्या शो करना है, इफ दिस फंक्शन इज f एंड दिस फंक्शन इज g, we need to define fog is equal to IA. I stand for identity element. Identity element means fog of x must be equal to x. और gof equal to IB, इसका मतलब हुआ gof is also a identity function. Gof of y is equal to y. ठीक है, वैसे भी नीचे लिखा हुआ IA x stand for equal to x means identity element is called the identity function on set A as well as set B respectively. Set A और set B आपको define है यहाँ पर. So let's do this question. First of all, what we will do? We will evaluate this gof. हम gof को evaluate करते हैं. gof का मतलब g of f of x, और f of x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3x plus 4/5x minus 7. ये वैल्यू हमने देखो as it is यहाँ पर वैल्यू यूज कर रहे हैं. Now what g will do? g क्या करेगा? How you will evaluate this value? For this, what we will do? हम ये जो ब्रैकेट के अंदर ये पूरी वैल्यू है 3x plus 4/5x minus 7, we will put this value here in this place of x as well as in this place of x. ठीक है ना, 7 के साथ में यहाँ पर भी और 5 के साथ यहाँ पर भी we will put the values of this brackets 3x plus 4/5x minus 7 here. Next time we will take the LCM. 4/1 you can write down, and then you can take LCM 5x minus 7. This also can be written as 3/1, and you will take LCM 5x minus 7 and simplify this. You will get this term. This minus 28 plus 28 get cancelled, right? Minus 15x plus 15x get cancelled. 20 plus 21 41x, and 20 plus 21 41. This 41 get cancelled, you will get x. Understood? This gof is equal to x. I told you. What do you mean by gof of IB? Gof of y must be equal to y. Gof of x must be equal to x. gof के अंदर जो भी वैल्यू पे डिफाइन करेंगे उसको x, y, z किसी भी नंबर पे डिफाइन कर लो आप, तो that must be equal to that particular value. ठीक है, तो यहाँ पर gof of x किसके इक्वल आ गया, x के. इसका मतलब क्या बना, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन चुका है. सिमिलरली हम fog को इवेल्युएट करेंगे. fog इज नथिंग f of g of x. gx की वैल्यू कितनी है, 7x plus 4/5x minus 3. अगेन हाउ यू विल इवेल्युएट दिस f of this? ये सारी की सारी वैल्यू जो 7x plus 4/5x minus 3 है, we will put in the function defined by f. f का फंक्शन ये रहा, see on the top. so यहाँ पर हम ये वाला x और ये वाला x यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे. 3 into ये वैल्यू पुट की, 5 into वो वैल्यू पुट की. now take the LCM. Simplify this, again you will get equal to x. अगर ये इक्वल आ गया, implies this is also identity function. ठीक है ना, gof of x equal to x आ गया, fog of x equal to x आ गया. इसका मतलब gof और fog दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है. ठीक है, हाँ जी. सो इस वाले टॉपिक से आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज गोफ एंड व्हाट इज फोग, हाउ यू विल इवेल्युएट फोग एंड गोफ. नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. हाउ यू विल इवेल्युएट दिस इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. इनवर्स ऑफ फंक्शन होता है क्या? ठीक है, तो उसके लिए देखिए, अ फंक्शन अगर डिफाइंड है फ्रॉम x to y is said to be invertible if there exists a function g from y to x. Clearly see, f defined है x to y और g defined है y to x. Invertible, inverse कर दिया, x to y को y to x कर दिया. ठीक है, so आपको ऐसा फंक्शन अगर हमारे पास एग्जिस्ट किया g such that gof as well as fog they both are equal to identity element. identity element को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, i के x के इक्वल हो गया. fog अगर fog को डिफाइन करेंगे y के ऊपर. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि g फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, g फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम y to x. g y to x है, तो g
कहां से वैल्यू लेगा, इस y से वैल्यू लेगा, इसलिए फोग का मतलब क्या होगा, f ऑफ g ऑफ y, और वो y के इक्वल होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, y एलिमेंट लिखा है। और गोफ किसके इक्वल है, गोफ का मतलब होगा g ऑफ f ऑफ x, और f के अंदर ब्रैकेट में कौन सा एलिमेंट होगा, फ्रॉम सेट दिस x, क्योंकि f डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट x, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन x। अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल ऐसे हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाते हैं, then we can say this g is nothing, it is inverse of this function f. This is very important, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके टाइप के। So and how you will represent this f inverse of this function, by f inverse, मतलब f की पावर में -1 लिख देंगे, ठीक है। In this way we will represent inverse of a function, all right, ठीक है। Thus if f is invertible then f must be 1 1 and on 2, ये रिमेंबर याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फंक्शन को, हमें क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट द फंक्शन इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, व्हाट वी विल डू, वी विल चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट, वेदर द फंक्शन इज ऑन 2 और नॉट। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है, देन वी कैन से द फंक्शन इज इनवर्स एग्जिस्ट, मींस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, इसका मोटो कि if f is 1 1 and on 2 then f must be invertible, ठीक है। हमारा वर्किंग रूल भी इसी पे डिपेंड रहेगा, 1 1 and on 2 पे। एक्सरसाइज से क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। आपका फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम दिस 1 3 4 to 1 to 5 एंड g also defined। नाउ यू कैन सी, देखो ये अगर हम सेट x लेके चलें और ये लेके चले y, नाउ यू कैन सी जो y है वो g के अंदर भी सेम है ना, g के अंदर y सेम है, ठीक। तो ये x टू y हो गया, ये y टू एनी फंक्शन z हो गया, सो इट विल बी गिवन बाय f। आपको फंक्शन वैल्यू गिवन है, g गिवन है, हमें गोफ की वैल्यू निकालनी है। पहले गोफ निकालना सीख लो, इनवर्स हम बाद में करेंगे इसके बाद, पहले गोफ निकालना सीखते हैं। गोफ का मतलब क्या था, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f कहां से डिफाइंड है, f डिफाइंड फ्रॉम 1 3 एंड 4, ठीक है। तो हम जो वैल्यू लेंगे यहाँ गोफ के अंदर, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे या फिर 4 लेंगे, ठीक है। तो अगर 1 लिया, g ऑफ f 1, और f1 की इमेज क्या है, देखो f डिफाइंड है फ्रॉम 1 को 2 पे लेके जा रहा है, f3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 1 है, ठीक है। ये से डिफाइन था ना 1 3 4 से लेकर 1 to 5, तो f क्या कर रहा है, f1 एलिमेंट को 2 से लिंक कर रहा है, 3 को 5 से, 4 को 1 के साथ। तो इसका मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमने 2 पुट की, और g क्या करेगा, देखो g है 1 को 3 पे लेके जाता है, 1 की इमेज 3, इमेज ऑफ 2 विल बी 3 एंड इमेज ऑफ 5 विल बी 1, ठीक है। तो इसका मतलब जो g की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक। इसकी एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज f ऑफ 1 इक्वल टू 2 एंड g ऑफ 2 इक्वल टू 3। बस ये गोफ ऑफ 1 डिफाइन हो चुका है हमारा, ठीक है, गोफ डिफाइन हो चुका है। अब एक और चीज मैंने कहा था, गोफ जब डिफाइन करेंगे मतलब g ऑफ f ऑफ x, जो f ऑफ x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 3 और 4। यहाँ पर 1 लिया, नेक्स्ट क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, और नेक्स्ट क्या लेंगे उसके बाद 4 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से देखते रहो, ये 5 है, तो हमने 5 पुट कर दिया, और g 5 को कहाँ लेके जा रहा है, g 5 को 1 पे लेके जा रहा है, सो आंसर विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली गोफ 4 पे डिफाइन करेंगे, यू कैन फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको गोफ इवैल्यूएट करना आना चाहिए। सो गोफ आंसर कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये 1 को 3 से लिंक किया, 3 को 1 से, 4 को 3 से, 1 को 3 से, 3 को 1 से, 4 को 3 से, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर ले लिया इसको, ठीक है। तो याद रखना, इस तरह से अगर आपको फंक्शन डिफाइन हो तो हम इस तरह से गोफ या फोग भी निकाल सकते हैं। क्या इस केस में फोग निकाल पाएंगे हम, क्या इस केस में फोग निकाल पाएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या इस फंक्शन में गोफ डिफाइन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसके ऊपर। ओके, सी वन मोर क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड फोग एंड गोफ। ये आर गिवन दैट ये fx हमारे पास और ये gx, ये f और g मिसिंग है यहाँ पर, ये f है यहाँ पर g है। fx डिफाइन है आपको mod x एंड gx डिफाइन है आपको 5x - 2,
ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ठीक है, एफ एक्स है मोड एक्स, जी एक्स है मोड 5x माइनस 2। हमें क्या निकालना है, गोफ। गोफ विल बी इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी, मोड, ये मोड वैल्यू पुट कर दो, जी क्या करेगा, वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 माइनस करेगा और सारी वैल्यू को मोड के अंदर डाल देगा। सो ये वैल्यू किया। नाउ फोग हम इवेल्युएट करते हैं, फोग इज नथिंग एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 2 का मोड। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, f के अंदर। f क्या करता है, वैल्यू का मोड ले लेता है, मतलब इस वैल्यू का डबल मोड हो जाएगा, है ना। हमने पहले g के अंदर वैल्यू पुट की, अब f क्या करेगा, इस वैल्यू को डबल मोड ले जाएगा। अब एक वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो एक मोड लगाओ या डबल मोड लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसको सिंगल मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अब क्या ये आपस में इक्वल होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी, आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। चलो हमें वो नहीं चेक करना है यहाँ पर, हमें सिंपली फोग और गोफ इवेल्युएट करना था, ये खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 4, वी आर गिवन दैट एफ एक्स is 4x plus 3 upon 6x minus 4, show that f of x is equal to x, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, लेट अस से हम इसको इवेल्युएट करते हैं, एफ एक्स इज गिवन टू यू, एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब दोबारा फिर वो f के अंदर है, ये सारी की सारी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, दोबारा से इस वाले x और इस वाले x, ये दोनों x में दोबारा पुट करेंगे वैल्यू को, क्यों, बिकॉज f क्या कर रहा है, सारी वैल्यू को वो लेट करता है, ठीक है। सो आपको आगे पता होना चाहिए आगे। सो वैल्यू पुट करेंगे हम, देखो वैल्यू पुट की हमने, कहाँ पुट की वैल्यू, इसी फंक्शन की, टेक एलसीएम, सिंप्लीफाइड, यू विल गेट इक्वल टू x, 34 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू x आ जाएगा, इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। यही हमें शो करना था, ठीक है, यही हमें शो करना था। मोर ओवर, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, मैंने कहा था आपको इनवर्स के लिए क्या था, गोफ मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फोग ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर f और g फंक्शन सेम ही है, क्योंकि f ऑफ f ही है, तो इसका मतलब चाहे पहले वाला f बाद में लिखो या बाद वाला पहले लिखो, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहेगी। इसका मतलब यही क्या होगा, इनवर्स होगा, मतलब इस केस में ये जो fx है आपका, यही अपने आप का इनवर्स होगा। Thus the given function f is invertible and the inverse of function f is f itself, ठीक है, f of f itself, ओके। आगे क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट विद डिवीजन whether the following function have inverse। फंक्शन आपको डिफाइन है, 1 को 10, 2 को 10, 3 पे 10 और 4 की इमेज भी 10 है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 सभी की इमेज कहाँ पर है, 10 पे है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 होगा, फंक्शन 1 1 होगा, ये नहीं होगा ना। 1 1 की डेफिनेशन क्या थी, अगर दो एलिमेंट है, अगर वो दो एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी सेम होगी, या फिर दो एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पर क्या 1 और 2 दोनों की इमेज कहाँ पर है, 10 पे, यहाँ पर इमेज सिंगल है, वहाँ पर 3 भी उसमें ऐड हो गया, 4 भी उसके अंदर ऐड हो गया, मतलब 4 एलिमेंट की एक इमेज बन गई, तो क्या बनाइए, ऑन 2 बन गया ना, इट इज नॉट मैंने 1 बना ना, इट इज नॉट 1 1, ठीक है। तो सबकी वैल्यू कितनी है, 10, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर फंक्शन ऑन इनवर्स के लिए कंडीशन क्या थी, 1 1 एज वेल एज ऑन 2, ये 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन का इनवर्स होगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयरफॉर f does not have an inverse, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगेन यहाँ पर देखो 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11, 5 की इमेज 13, देखो इमेज तो सबकी अलग अलग है, 7 9 11 13, और एलिमेंट भी 4 हमारे पास लेफ्ट में है, 4 ही राइट में है, मतलब ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखना कैसे, हमने जो फंक्शन डिफाइंड है, h फंक्शन डिफाइंड है 2 7 3 9
411 एंड 513 क्लियरली सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 2 3 4 5 एंड सबकी डिस्टिंक्ट इमेज भी है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। अब कोई इमेज एग्जिस्ट करती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी है ना। अगर इस तरफ हम 7 ले लें, 7 के लिए हमारे पास 2 बैठा हुआ है, ये गिवन है ना सेट, ये देखो है ना। यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, 11 4 13 5। इसका मतलब हमारे पास हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ऑन टू हुआ ये फंक्शन। अगर फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हेंस वी कैन से H हैज एन इनवर्स। ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वैसे इसमें पूछा नहीं, अगर हमें इनवर्स लिखना होता हम इसको कैसे लिखते, ये 2,7 को लिखते 7,2, 3,9 को लिखते 9,3 एंड सो इस तरह से आप इसका इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। You are given that fx is equal to x upon x plus 2. We need to show that it is 1 1, and if it is 1 1 we need to find inverse. Obviously on to हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, तो in this question we will use the concept of gof of x must be equal to x, gof of and fog of y is must be equal to y, या fog of x is also equal to x, means fog और gof दोनों अगर आपस में identity element होंगे then we can say that is inverse exist, but before that we need to check whether this function is 1 1 or not. All right, so you are given that fx is, this is x upon x plus 2, fx is x over x plus 2, we'll take for 1 1 we will take fx equal to fy, यहाँ पर ये अपॉन है। ठीक है, fx equal to fy, so put the value of fx x upon x plus 2, fy is y upon y plus 2, दोनों को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट दिस टर्म xy, बिकॉज ये जो x है ये इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये जो y है ये इस मल्टीप्लाई टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। xy गेट कैंसल्ड, यू आर लेफ्ट विद 2x इक्वल टू y, 2 गेट कैंसल्ड, यू विल गेट x इक्वल टू y। हमने लिया था fx इक्वल टू fy और वी प्रूव दैट x इज इक्वल टू y, इट मीन्स द फंक्शन इज 1 1। ओके, नाउ जो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है -1 to 1 to r, अब ऑब्वियस r में अगर आप कोई भी नंबर लोगे, ठीक है, जो फंक्शन रेंज होगी दैट विल बी, जो भी रेंज होगी उसके लिए जो फंक्शन होगा आपका ये फंक्शन ऑन टू क्लियरली है। ठीक है, now this function is 1 1 and on 2, therefore inverse of this function f exists। ठीक है, इस फंक्शन जो f जो हमारा डिफाइन था -1 to r2 रेंज ऑफ f इट एग्जिस्ट। हमें प्रूफ इसके लिए हमें क्या निकाला है, इनवर्स निकाला है। इनवर्स को हम उल्टा डिफाइन कर देंगे। इसके लिए इनवर्स को हम उल्टा डिफाइन करेंगे, मींस हमने -1 to 1 से लेकर f के r के प्लेस पे रेंज ऑफ f है, याद रखना ये चीज, यहाँ पर रेंज f की बात हो रही है। ठीक है, तो रेंज f अगर हम उल्टा डिफाइन करें इसको -1 to 1 और हम लेट अस से इस वैल्यू को कोई y के वैल्यू, आर्बिट्रेरी y वैल्यू के इक्वल ले लेते हैं। लेट अस से y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। ठीक है, और वहां से अगर आप लेंगे फॉर सम y, उस y की वैल्यू लो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x के टर्म को शिफ्ट किया, x इज इक्वल टू नथिंग 2y अपॉन 1 माइनस y। ये वाली टर्म जो है 1 माइनस y, इट विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, सो नाउ वी विल डिफाइन द फंक्शन। फंक्शन हमने डिफाइन किया वही रेंज ऑफ f से लेकर -1 to 1, और जो फंक्शन डिफाइन किया फंक्शन इज दिस 2y अपॉन 1 माइनस y। ये कहाँ से वैल्यू आई, ये वैल्यू जो हमने अभी यहाँ पर वैल्यू ली थी, क्योंकि हमें यहाँ पर इनवर्स डिफाइन करना है। अगर कोई फंक्शन गिवन होता तो हम डायरेक्ट चेक कर लेते, बट यहाँ पर आपको उस इनवर्स फंक्शन को निकालना है, तो हमें ये काम करना पड़ा। उसी जो भी फंक्शन डिफाइन था उसी को इक्वल टू y लिया और वहां उन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल। हमारे पास फंक्शन g डिफाइन है, f डिफाइन है। नाउ हम लेंगे fog and gof and we will check whether they are identity element or not. If they are identity element then we can say this is the inverse of given function। ठीक है, gof डिफाइन करते हैं, gof of x is nothing g of f of x,
एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू थी x अपॉन एक्स प्लस 2, ये वैल्यू डिफाइन पुट की। जी क्या करेगा, इस वैल्यू को यहां पुट करेगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आफ्टर सिंप्लीफाइंग टेकिंग एलसीएम यू विल गेट इक्वल टू x, मीन्स गोफ इक्वल टू x आ गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन हो गया। नाउ हम निकालेंगे फोक। फोक y का मतलब होगा f ऑफ g ऑफ y, जी वाई की वैल्यू पुट करो, जी वाई की वैल्यू को अब हम कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन f के अंदर, और जैसे आप f के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, टेक एलसीएम, सिंप्लीफाई, यू विल गेट इक्वल टू y। फोक y इक्वल टू y, गो ऑफ x इक्वल टू x, इसका मतलब फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। अगर आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो जो f इनवर्स कौन सा फंक्शन होगा, जो हमने फंक्शन g डिफाइन किया था, इट इज नोन एज इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। सो f इनवर्स इज नथिंग, दैट विल बी इक्वल टू g। सो f इनवर्स y इज नथिंग 2y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपको गिवन हो, वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन आल्सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ओके ओके, आगे देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। We are given that fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 and we need to show that it is invertible. To prove invertible we need to prove it is 1 1 and on 2. f inverse आपको दे दिया साथ में, ठीक है। So you are given that function is defined from r positive, it cannot be negative, means positive real number to minus 5 to infinity, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपका इनवर्स जो होगा हमारा ये वैल्यू आने वाली है, और ऑब्वियस है रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए यहाँ पर -5 टू इन्फिनिटी वैल्यू पुट किया है, -5 से हम लेफ्ट में नहीं जाने वाले हैं। ओके, सो हमारे पास हमने उस जो फंक्शन गिवन था 9x के प्लस 6x माइनस 5, ये आपको फंक्शन मालूम है, फंक्शन गिवन है, हमने उसको इक्वल टू y डिफाइन किया, राइट। या तो हमारे पास फंक्शन है कि इसको 1 1 2 प्रूव करें, उसके बाद हम फंक्शन निकालें, या फिर जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा इसको इक्वल टू y लो, y लेने के बाद x इन टर्म्स ऑफ y आप एक्सप्रेस करो, उसको हम g बोल देंगे, वो g और ये f, गोफ एंड फोक, अगर दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट आ गए तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट कर जाएगा ना। तो इसको मैं उसी मेथड से कर रहा हूँ, 1 1 2 से नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू 9x प्लस 6x माइनस 5, ये इसी वैल्यू को हमने y के इक्वल लिया। इक्वल लेने के बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया, विच यू हैव डन इन क्लास 10, उसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपली आपकी वैल्यू ये आएगी, इसको रूट को माइनस स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, यू विल गेट दिस y प्लस 6, ठीक है। बेसिकली इसको हम प्लस माइनस ही लेंगे, यहाँ प्लस माइनस होगा, बट हम प्लस वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माइनस को हम इग्नोर कर सकते हैं, y बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव। x क्या था, x कम्स फ्रॉम दिस r पॉजिटिव, r पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, उस पॉजिटिव रियल नंबर की वजह से मैंने यहाँ पर प्लस माइनस को इग्नोर किया है, ठीक है। उस प्लस माइनस को आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज x कम्स फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, सो अब ये तो क्लियरली है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू अगर -5 टू इन्फिनिटी में लेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन g डिफाइन कर दिया, अगेन g डिफाइन करेंगे, g डिफाइन किया, g डिफाइन करने के बाद g फंक्शन वही होगा जो हमारी x की वैल्यू निकली, ये x की वैल्यू निकली है, इसी को हम क्या बोलेंगे, g ऑफ y। नाउ टू प्रूव इनवर्स व्हाट वी विल डू, गोफ, वी विल इवैल्यूएट गोफ, फोक, and we will check whether they are equal to identity element or not, right। तो gof of x is nothing, this is g of f of x, fx की वैल्यू पुट करते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, g के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, g के अंदर जैसे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा इसको, एंड यू विल गेट इक्वल टू x, मतलब गोफ तो हमारा x के इक्वल आ गया। अगर बाई चांस गोफ x के इक्वल नहीं आता, हम वहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं और वहीं बोल देते हैं भाई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि गोफ इक्वल टू x नहीं है, बट यहाँ पर गोफ हमारे पास इक्वल आ चुका है। नाउ वी विल चेक फोक, ठीक है। फोक के लिए अगेन सेम फंक्शन, सेम फंडा है, f ऑफ g ऑफ y
जी वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पर, ये वैल्यू पुट की, इसको पुट करेंगे एफ के अंदर, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू वाई, because this square root and square get cancelled, plus 6 minus 6 get cancelled, you will get equal to y. Now go off and fork, they both are identity function, implies f is invertible and inverse is nothing this g, है ना, ये इसका क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन रिक्वायर जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद दिस, ये क्वेश्चन आ सकता है शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल या फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इनवर्स करने के लिए आप पहले इसको जी डिफाइन कर लो, फोक और गोफ की वैल्यू निकाल लो, अगर दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट आएंगे देन वी कैन से दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। ओके, नाउ एफ फ्रॉम आर टू आर क्वेश्चन डिफाइंड बाय 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एफ ऑफ एक्स लिया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब रूट, वैल्यू पुट कर लो, ये अगेन दिस वैल्यू वी विल पुट इन दिस प्लेस ऑफ एक्स, दिस क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसल्ड, ऑल राइट, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप इसको, 3 गेट कैंसल, 3 माइनस 3 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस एक्स क्यूब बन गया, अगेन 3 गेट कैंसल, यू विल गेट इक्वल टू एक्स, मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई एक्स। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन विल बी इक्वल टू सी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, इससे आपको जो इन्वर्टिबल फंक्शन है बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, और इसे जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है इसी से रिलेटेड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।